Good morning, my dear students. Hope you all are doing good. उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपना काम भी कर रहे होंगे। चलो आज इस चीज को चेक करते हैं कि अपना काम कौन कौन कर रहा है या मेरे वीडियो लेक्चर्स कौन कौन देख रहा है। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में कहीं कोई ऐसी बात बोलूंगा, इस पूरे वीडियो लेक्चर में कहीं वो एक ऐसी बात छुपी होगी जिसका आपने मुझे रिप्लाई करना है। तो जिन स्टूडेंट्स का रिप्लाई आता है आई विल बी हैप्पी टू नो कि हाँ वो स्टूडेंट्स मेरी क्लास को रेगुलर देख रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस सी कि कितने बच्चे हैं जो अपना काम रेगुलरली कर रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, so that I can come to know whether you are doing it properly or not. Okay, the another thing is which as I told you earlier, you have to get yourself registered with the school. You have to get yourself registered with the school, my dear. So some of the students have already got their registrations. They have already done with their registrations, but many of the students are there who have not got their registration. So I advise to the remaining students, I advise the remaining students to get yourself registered with the school so that the school can send your details of plus one standard to the CBSE, ताकि स्कूल आपकी डिटेल्स CBSE के पास भेज सके that this student is registered with us and he is pursuing or she is pursuing this course with our institute, and that is necessary to be submitted to the CBSE within a stipulated period of time. So I advise you I advise the remaining students who have not got themselves registered, please get yourself registered with the institute. You can call me or Rajiv sir, or you should come to school to know the process of the same. Okay, beta? So you must get yourself registered and try to get to the same up to 1st of August. That is today's 29. So 29, 30 and 31. You've got 3 days to go with. In these 3 days, I'll be sitting there in the school. मैं आपको स्कूल में मिलूंगा, राजीव सर भी आपको स्कूल में मिलेंगे between 10 to 1. 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आप कभी भी स्कूल में आ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स है तो आप ले सकते हैं, कुछ डिस्कस करना है तो यू कैन ट्रूली डिस्कस। ओके, तो मैंने कहा था कि मैं इस लेक्चर के बीच में कुछ एक बात बोलूंगा जिससे कि मेरे को पता लगेगा अगर आप रिप्लाई करेंगे तो कि वेदर यू आर लुकिंग एट द वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर्ली और नॉट। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक बार। I have with me illustration number 4 of the chapter journal. I have with me illustration number 4 of the chapter journal. Although we are doing ledger, हम ledger कर रहे हैं हालांकि, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ जर्नल। ठीक है, तो जर्नल की जो ट्रांजेक्शन दी हुई है उसके बेसिस पे हम लोग ये सीख रहे हैं कि लेजर कैसे बनाते हैं। तो एक बार जब स्टार्टिंग कर रहे हैं बेटा, तो मैंने आपको जर्नल का आंसर दे रखा है, मतलब ट्रांजेक्शन की जर्नल कैसे बनती है वो दे रखा है। दे रखे हैं इन द सेंस की क्योंकि हम लोग इलस्ट्रेशन कर रहे हैं जर्नल वाली, और जर्नल वाली इलस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब जर्नल हमने बना रखी है, बुक में बनाई हुई। उसके बेसिस पे वी आर ट्राइंग टू पोस्ट द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। उसके बेसिस पे हम लोग एंट्रीज को जर्नल से लेजर में पोस्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आया वैसे, when the entries are first of all recorded in the journal, that process is known as recording. And when the entries from the journal are posted to the ledger, जब एंट्रीज को जर्नल से लेजर में पोस्ट किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज लेजर पोस्टिंग। ठीक है, तो
Let's get started with illustration number 4 of journal given to you on page number 9.14, जिसमें books of Naresh and company given है. Record the following transactions in the journal of Naresh and company. तो आपको कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है, उसकी जर्नल हमें बुक में सॉल्व गिवन है. तो मैं अब आपका क्वेश्चन चेंज करता हूँ, हमें जर्नल नहीं बनानी. On the basis of the given transactions, I am telling you to prepare. I am telling you, asking you to prepare account of Mahesh, cash account of Mahesh, cash account, sales account, purchase account, discount allowed account, discount received account. So बच्चे, I am asking you to prepare these two accounts. Okay? Sorry, these 6 accounts. That is Mahesh, cash, sales, purchases, discount allowed and discount received account. हमें ये accounts बनाने हैं. Okay? So let's read solution number entry number 1 of from the solution. Entry number 1 is, my dear, Mahesh debit to cash to discount receipt. अब मैं यहाँ पे कंपाउंड जर्नल एंट्रीज की, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कौन सी होती है या कंपोजिट जर्नल एंट्रीज कौन सी होती है जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 3 अकाउंट्स आ गए, मतलब 2 से ज्यादा हो गए. देयरफॉर हमें एंट्री गिवन है, सो यू नीड टू लिसन केयरफुली. जिन्होंने मेरे लेजर के फर्स्ट 2 लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो उनको सिंपल एंट्रीज तो आ गई है समझ में. अगर सिंपल होती कि महेश टू कैश तो उसको कैसे करना. अब इसमें 3 एंट्रीज का एग्जांपल लें. ठीक है, एंट्री है महेश टू कैश टू डिस्काउंट. ठीक है, दिस इज महेश डेबिट हो रहा है बचे रुपीज 10,000 से, टू कैश 9,600 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट रुपीज 400. आपको ये एंट्री गिवन है. ठीक है, अब वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट ऑफ महेश कैश और हमें डिस्काउंट रिसीव्ड भी बनाना है. तो बेटा ऐसा नहीं है कि हम लोग एक एक अकाउंट करके बनाएंगे, हम लोगों को एक एक अकाउंट करके नहीं बनाना. ऐसा थोड़ी ना कि आप सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे. ठीक है, उसमें से महेश वाली जो भी ट्रांजेक्शन सारी होगी पहले आप महेश वाला अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ये लो जी. फिर हमें कैश अकाउंट बनाना है, फिर से आप सारी ट्रांजेक्शन्स को पढ़ो. हाँ, कैश 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 कौन सी ट्रांजेक्शन में आ रहा है, फिर उसके बेसिस पे कैश अकाउंट बनाओ. फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाना है, फिर आप सारी ट्रांजेक्शन्स को फिर से पढ़ो, ये देखो कि डिस्काउंट रिसीव्ड किस अकाउंट में आ रहा है, फिर डिस्काउंट. बच्चे ऐसे तो अगर किसी क्वेश्चन में 5 अकाउंट बनाने हुए तो हमने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 5 बार रीड कर लिया. दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच. वो करेक्ट अप्रोच थोड़ी ना है. हमें तो साइमल्टेनियसली चलना है, कोई स्पेस की कमी थोड़ी ना है हमारे पास. तो हम एक बार अपनी स्पेस बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं ये वाली साइड ड्रॉप करूंगा मुझे, आई विल बी यूजिंग दिस साइड एज वेल. आप हमने ये अकाउंट्स बनाने हैं. ठीक है, so you can note it down, note this down. So I am preparing account of Mahesh from here. अब मैं थोड़ा सा सिंपल वे में चलूंगा. I have told you the format. क्या कुछ आता है बच्चे फॉर्मेट में? This is debit side and this is credit side. Date, particulars, journal folio and amount. Similarly here date, particulars, journal folio and amount. ठीक है, तो जो लेजर अकाउंट्स होते हैं दे आर आल्सो नोन एज टी शेप अकाउंट. देखो टी शेप आ रही है, देयरफॉर दीस आर आल्सो नोन एज टी शेप अकाउंट. महेश अकाउंट के बाद हमने बनाना है कैश अकाउंट, तो मैं इसी के नीचे कैश अकाउंट का फॉर्मेट भी बना लेता हूं. ठीक है, इसके बाद हमें बनाना है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. तो ये लो जी, मैं डिस्काउंट रिसीव्ड का फॉर्मेट, मेरा ये एक पेज है बच्चे. आप एक पेज में वर्टिकली चलेंगे, आपका ये जो 1 पेज है तो आप यहाँ पे एक अकाउंट आपने बना दिया, पूरा पेज कवर कर लिया, फिर उसी पेज पे उसी के नीचे ये कर लिया. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. अगर लेट से ये आपकी नोटबुक का एक पेज है, 1 पेज है, तो आप इतने से पोर्शन में महेश का अकाउंट बना दो, इतने पोर्शन में
अपने क्वेश्चन में आपने महेश का अकाउंट बना दिया, फिर आप सोचते हो इसके नीचे कैश का बना दिया, दैट इज फाइन। लेकिन आप सोचते हो कि सर ये वाला स्पेस तो बच ही गया, यहाँ पे डिस्काउंट का अकाउंट बना दो, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बना दो। तो नहीं, आपको करना है कि महेश का अकाउंट इस पूरे पेज को कवर कर लो। महेश अकाउंट यहाँ तक बना दो, यहाँ तक आ गया, इसके नीचे कैश अकाउंट बना दो, आपके पास स्पेस बचता है। फिर भी स्पेस बचता है तो पूरा आपने पूरा हॉरिजॉन्टल पेज कवर कर। आई होप दैट इज क्लियर। आपके पास नोटबुक्स है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। इन द प्रॉपर फॉर्मेट यू प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग इन द प्रॉपर फॉर्मेट। So we have to prepare account of Mahesh, account of cash and account of discount received as well. तो मैं discount received का अकाउंट बेटा यहाँ बना देता हूँ, discount received account, ठीक है। एंट्री है हमारे पास महेश डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सर एक बार बाकी सब छोड़ दो, हम सिर्फ एक बार महेश का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। महेश का अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मैं आपसे बीच में क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपने अब मुझे रिप्लाई करना। द क्वेश्चन इज व्हेन द एंट्रीज आर पोस्टेड फ्रॉम जर्नल टू लेजर, जब एंट्रीज को जर्नल से लेजर में पोस्ट किया जाए, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज, उस प्रोसेस का आपने नाम मेरे को लिख के भेजना है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो महेश का अकाउंट बना रहे हैं, महेश के अकाउंट में क्या नहीं आएगा, मैंने बताया था महेश के अकाउंट में यहाँ पे कहीं पे भी महेश का नाम दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो क्या रह गया, महेश का नाम नहीं आ रहा तो क्या रह गया, हमारे पास रह गया टू कैश टू डिस्काउंट। क्या रह गया, महेश से दोनों रिलेटेड है ना, महेश एक अकेला डेबिट हो रहा है और ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो ये दोनों ही महेश से रिलेटेड है। तो महेश के अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। और टू वाली एंट्रीज कहाँ पे आती है, टू वाली एंट्रीज डेबिट साइड में आती है। क्यों आती है, क्योंकि डेबिट साइड का मतलब ये नहीं है कि कैश और डिस्काउंट रिसीव डेबिट हो गई। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज को, क्योंकि आपके दिमाग में ये छप जानी चाहिए। इस डेबिट का मतलब क्या है, आपने सेकंड क्वेश्चन आज का सेकंड क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन कहा था, सेकंड क्वेश्चन निकल कर आया, इस डेबिट में मतलब इस अकाउंट में डेबिट क्या हो रहा है। इस अकाउंट में डेबिट क्या हो रहा है, आपने मुझे लिख के बताना है। क्या महेश अकाउंट डेबिट हो रहा है या फिर कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू इज दिस। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सेकंड क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस का आपने मेरे को रिप्लाई वन वर्ड में कर देना, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो महेश से कैश और डिस्काउंट रिलेटेड है, तो यहाँ पे आ गया टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा, कैश और महेश का कितने का रिलेशन है, कैश कैश और महेश का कितने का रिलेशन है, क्या 10,000 का रिलेशन है या 9600 का रिलेशन या 400 का। तो 400 तो भारी हो गया, क्योंकि 400 का तो कैश से कोई लेना देना है नहीं। कैश का महेश से कितने का लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ 9600, ठीक है। महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 9600। अच्छा, अब आगे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट का महेश से कितने का रिलेशन है, 400 का, तो रुपीज 400, ऐसे एंट्री हो जाएगी। अब ऑन द अदर हैंड वी हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट एज वेल। कैश अकाउंट में इसकी क्या लेजर एंट्री होगी, क्या पोस्टिंग होगी, देख लो। देखो कैश अकाउंट में क्या नहीं आएगा, ध्यान रखना, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। कैश अकाउंट में क्या नहीं आएगा, कैश अकाउंट में कहीं पे भी कैश नहीं आएगा। कैश अकाउंट में कहीं पे भी कैश नहीं आएगा, नहीं आएगा, एक बात तो साफ है। अब इस केस में देखना, बड़े ध्यान से सुनना, कैश अकाउंट में कैश नहीं आएगा, इस एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो इस एंट्री में मतलब इस अकाउंट में कैश कहीं पे भी नहीं आएगा, तो कैश तो आ ही नहीं सकता। लेकिन कैश ने क्या किया, कैश तो डूबा ही डूबा, मतलब कैश कह रहा है मैं तो अपने अकाउंट में जा ही नहीं सकता। साथ के साथ कैश ने क्या किया, ये डिस्काउंट को लेकर और डूब गया, कैश तो डूबा ही डूबा।
साथ में डिस्काउंट को लेकर और डूब गया। कैश कहता है भाई मेरा नेचर क्रेडिट है, मेरा नेचर क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट कैश में तो वैसे भी नहीं आ सकता। तो कैश कह रहा है मैं तो मेरे अकाउंट में आ ही नहीं सकता, और मेरा नेचर क्रेडिट है, मेरे साथ जिस जिसका भी नेचर क्रेडिट है, मेरे साथ जिस जिसका भी नेचर क्रेडिट है, मैं उनको भी अपने अकाउंट में जगह नहीं दूंगा। फिर से बोल रहा हूँ, कैश अकाउंट में कैश तो आ ही नहीं सकता, तो हमने ऐसे डिसाइड किया कि कैश नहीं आ सकता। लेकिन कैश ने यहाँ पे बोला क्योंकि मैं यहाँ पे क्रेडिट हो रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मैं उस अकाउंट को भी मैं उस ट्रांजेक्शन को भी मेरे अकाउंट में जगह नहीं दूंगा। तो क्या रह गया इस केस में, क्या रह गया, कैश अकाउंट में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ महेश। महेश डेबिट हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश को क्रेडिट करना है। कैश क्रेडिट कब होगा, जब कैश वाली एंट्री मतलब इस साइड आ जाएगी, जो इससे रिलेटेड एंट्री है वो इस साइड आएगी। इससे रिलेटेड एंट्री क्या है, बाय महेश। अब वही चीज, भाई महेश और कैश का रिलेशन कितने का है, महेश और कैश का रिलेशन कितने का है, 9600 का है। वेरीफाई करके देख लो, इस अकाउंट में ये एंट्री यहाँ पे आ रही थी, कैश अकाउंट में अपोजिट साइड आ गई। ठीक है, अब आती है डिस्काउंट की बारी, अब आती है डिस्काउंट की बारी। डिस्काउंट अकाउंट भी बना रहे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्या नहीं आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं आएगा, तो ये लो जी, हमने यहाँ से डिस्काउंट रिसीव कर दिया। लेकिन अब जो कंडीशन कैश की थी वो डिस्काउंट भी तो लगाएगा। कैश ने डिस्काउंट को अपने अकाउंट में आने से मना कर दिया था, क्यों, क्योंकि उसका नेचर सेम था। अब जब डिस्काउंट अकाउंट में एंट्री करनी है, तो डिस्काउंट क्या कहते हैं, भाई मेरे अकाउंट में मैं तो आ नहीं सकता, तो मैं तेरे को भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मेरा नेचर क्रेडिट है तो तेरा भी नेचर क्रेडिट है। डिस्काउंट ने कहा मैं भी बदला लूंगा, क्योंकि तेरे अकाउंट में मैं नहीं आ सकता ना, तो मैं मेरे अकाउंट में कैश तेरे को भी नहीं आने दूंगा। तो क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ भाई महेश। भाई महेश कितने रुपए से, डिस्काउंट और महेश का रिलेशन कितने का, सिर्फ और सिर्फ 400। ठीक है, आई होप दिस इज ओके। तो ये 3 ट्रांजेक्शन, मतलब एक एंट्री हमने की जिसके बेसिस पे 3 अकाउंट्स हमने साइमल्टेनियसली बना दिए, बार बार रीड थोड़ी ना करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू अरुण। कैश डिस्काउंट टू अरुण, ये डिस्काउंट अलाउड डेबिट है। ठीक है, हमारे पास है 4900, 100 और 5000। अब देखो हमें कैश अकाउंट बनाना है, हमें महेश कैश डिस्काउंट रिसीव्ड और एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी बनाना था, है ना। तो ये लो, मैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट यहाँ पे बना देता हूँ, अरुण का अकाउंट तो बनाना नहीं है। तो कैश अकाउंट में, अच्छा ये बताओ क्या इसकी एंट्री कहीं पे भी महेश के अकाउंट में आएगी, नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पे महेश का नाम लिखा ही नहीं हो, तो महेश का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। अब आ गया कैश, कैश अकाउंट में क्या नहीं आएगा, कैश अकाउंट में क्या नहीं आएगा, कैश अकाउंट में सर कैश नहीं आएगा, नहीं आएगा तो भी कर, कैश ने क्या कहा, क्या कंडीशन लगा दी, कैश का नेचर डेबिट है, तो कैश ने कहा मेरे अकाउंट में मैं तो आ नहीं सकता, मेरे साथ जितनी भी चीजें डेबिट है उसको भी नहीं आने दूंगा। तो कैश ने कहा डिस्काउंट मैं तेरे को भी नहीं आने दूंगा। क्या रहेगा, टू अरुण, टू अरुण, कैश का और अरुण का रिलेशन कितना है, 5000 है या 4900 है, भाई ऑब्वियस सी बात है कैश और अरुण का रिलेशन तो 4900 का ही है, देयरफॉर 4900। अब आ जाओ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट पे, हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी बनाना है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड तो आएगा नहीं, सेम कंडीशन डिस्काउंट अलाउड लगाएगा, भैया मेरा नीचे डेबिट है मेरे अकाउंट में, मैं तो वैसे भी नहीं आ सकता, लेकिन मेरे साथ जो बाकी चीजें डेबिट हो रही है उनको भी मैं मेरे अकाउंट में नहीं आने दूंगा। तो जो कंडीशन कैश ने लगाई थी वो डिस्काउंट ने लगा दिया। ठीक है, तो डिस्काउंट अकाउंट में क्या रह जाएगा, नहीं तो डिस्काउंट आएगा नहीं कैश आएगा, क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ टू अरुण। कितने का रिलेशन है दोनों बीच में, सिर्फ और सिर्फ 100 का। अब इस केस में अगर हमें अरुण का अकाउंट बनाना भी होता, तो अब अरुण का अकाउंट अलग से बनाते, वहां पे क्या आता, अरुण के अकाउंट में क्या नहीं आएगा, अरुण नहीं आएगा, और तो अरुण की कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि और कोई अकाउंट क्रेडिट हो ही नहीं रहा, अरुण के अकाउंट में अरुण आ नहीं सकता, तो क्या रह गया, बाय कैश बाय डिस्काउंट। आप अरुण का अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे, लो मैं बना के दिखा देता हूँ। आप अगर अरुण का अकाउंट बनाएंगे
तो क्या आ जाएगा, बाय कैश बाय डिस्काउंट 4900 और ओके, ओके कि विजिबल नहीं है, तो बच्चे दिस विल बी बाय कैश अकाउंट 4900 and by discount account rupees 100. I think this is okay. This is visible. Okay. Earn के according. So this way you have to do. आज मैंने आपको एक और स्टेप सिखाया, कल एक और स्टेप सिखाऊंगा कि इन अकाउंट्स को क्लोज कैसे किया जाए. ठीक है, इन अकाउंट्स को क्लोज कैसे किया जाए. So my dear students, on the basis of the concepts done today, on the basis of the concepts done today, you have to do, you have to prepare all the accounts of illustration number 4. all the accounts का मतलब जो मैंने आपको 6 अकाउंट्स लिखवाए, कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, महेश, परचेज और सेल्स अकाउंट, 6 अकाउंट बनाने. फिर आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे. इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आपने कौन से अकाउंट बनाने हैं, यू शुड नोट इट डाउन. इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आपको बनाना है परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज, सेल्स और कैश, फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बैंक अकाउंट. 5 अकाउंट हो गए. ये 5 अकाउंट आपको बनाने हैं. ठीक है, तो ये 5 अकाउंट बना के इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, और जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 के जो रिमेनिंग अकाउंट्स है वो आपने बना के मेरे को फॉरवर्ड करना. आई होप दिस इज ओके. और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने तो एक तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे, उसका रिप्लाई करना, और मैंने आपसे लेजर में 5 दिन मांगे थे, लेकिन आपके रिप्लाई कुछ बच्चों के आने शुरू हो गए हैं. तो दैट इज अ गुड मोटिवेशन, दैट इज अ गुड कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू टुमारो. एंड as I told you, Vijay, you should get yourself registered. So you have to get yourself registered. You should call me or Azib sir by today if you are watching this lecture. जिन बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन यानी एडमिशन करवा लिया है, जिन्होंने 1 महीने की 2 महीने की फीस पे कर दी है, तो इसका मतलब उनका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो गया है. जिन्होंने, आई वुड एडवाइज, जिन्होंने अभी तक सिर्फ 1 मंथ की फीस पे की है, वो अपनी मई की और जून की फीस और पे करेंगे. ठीक है, बट डू कॉल मी और राजीव सर टुडे रिगार्डिंग योर एडमिशन और रजिस्ट्रेशन की आप वो कब करवा रहे हैं. यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अप टू 1 अगस्त. ठीक है, यानी 2-3 दिन में आप इसको करवाओ. बाय बाय, और 2 क्वेश्चंस का रिप्लाई करना. ठीक है.